Good afternoon once more. Let us see today the cell wall and the functions going inside the cell wall. Plant cells. We are talking about plant cells. Plant cells, in addition to plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. Plant cell में और animal cell में एक difference है. That is, there is plasma membrane, isn't it? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो है प्लांट सेल में और क्या होता है, बोलो. Cell wall. Yes, cell wall. What is the advantage of cell in a plant cell? Can you tell? What is the advantage of cell wall in a plant cell? क्या advantage है उसका? It gives another outer covering to the cell. Yes, it gives a definite shape or rigidity to the outer covering of the cell. The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose, and this plant cell wall क्या चीज का बना हुआ है? Mainly वो क्या चीज का बना हुआ है? Cellulose. Yes, सेलुलोज का बना हुआ है. ज्यादातर वो क्या चीज का बना हुआ है? सेलुलोज. Cellulose is a complex substance and provides a structural strength to plants. So this cellulose only provides structural strength to plants. When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. Animal cell में तो हम लोग ऑब्जर्व किए कि श्रिंकेज होता है या स्वेलिंग होता है, that we can directly observe it. मगर ये जो प्लांट सेल है जिसमें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी है, जब श्रिंकेज हो रहा हो या स्वेलिंग हो रहा हो तो पता नहीं चलता है क्योंकि वो उसके अंदर है. But by the experiment we get confirmed that shrinkage or swelling is going on. Then what would happen in all these cases when a living plant cell loses water through osmosis? There is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall, and this phenomena is known as plasmolysis. Now this word plasmolysis, what do you mean by the word plasmolysis? Can you explain it in your own words? Plasmolysis का क्या मतलब होता है? और ये खास करके प्लांट सेल के केस में होता है. Yes, anyone can explain? बोलो. You have got your things with you only, and you can tell the answer also if you want to tell it. So anyone can try it. Can you tell what will be the answer? Plasmolysis? No one? Let me explain you. What the phenomena just I have explained you just now. When a living plant cell loses water, प्लांट सेल से यदि पानी निकल जाए तो वो श्रिंक करेगा कि स्वेल कर जाएगा? क्या होगा? श्रिंक करेगा. There is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. और यहाँ पे श्रिंक होगा यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा और सेल वॉल जो है, सेल वॉल नहीं, जो मेम्ब्रेन है श्रिंक करेगा और सेल वॉल से अलग हो जाएगा. दिस फेनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस. तो जब सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से अलग हो जाए, श्रिंक होकर के, खास करके हम लोग प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं?
इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? Plasmolysis. प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। We can observe this phenomena by performing the following activity. Now there is activity 5.6. We can observe this phenomena in this one. Mount the peel of a real leaf in water on a slide and examine cells under the high power of a microscope. इसमें हमें जो स्लाइड तैयार करेंगे, पानी डाल करके तैयार करना है और उसे हाई पावर माइक्रोस्कोप के अंडर में ऑब्जर्व करना है। नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। हमें नोट करना है स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स, उसको क्या कहते हैं? Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट। जो लीफ में रहता है कलर्ड, उसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। जाहिर है कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करेगा क्लोरोफिल। Put a strong solution of sugar or salt on the mounted leaf on the slide. अब उसमें हमें strong solution of sugar या salt का डालना है, इस तरह से स्लाइड तैयार होगा। Wait for a minute and observe under the microscope. What do we see? देखो यहाँ पर दो केस हम लोग ऑब्जर्व किए। पहला केस में सिर्फ सादा पानी से माउंट करके इलेक्ट्रॉन में ऑब्जर्व कर लिए हैं। दूसरे केस में थोड़ा सा एकदम स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन तैयार करना है, सॉल्ट डाल के पानी में या फिर शुगर डाल करके, तो ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है। अब फिर ऑब्जर्व करोगे माइक्रोस्कोप के अंडर में तो क्लियरली देखोगे कि वहां पर क्या नजर आएगा। सॉल्ट सोल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड है, यहाँ पर जो आउटर मीडियम है वो कंसंट्रेटेड है, उसमें सॉलिड पार्टिकल्स ज्यादा है, वो सलाइन है मतलब सॉल्टी है या सुगरी है। तो पानी अब सेल के अंदर से बाहर जाएगा कि बाहर से अंदर जाएगा? बोलो, पानी सेल के अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा? जल्दी बताओ। अरे भाई, सॉल्ट सॉल्यूशन बाहर है, बाहर का मीडियम ज्यादा कंसंट्रेटेड है और अंदर का मीडियम ज्यादा, सॉरी हाँ, बाहर का ज्यादा कंसंट्रेटेड है और सेल में कम कंसंट्रेशन है। ठीक, पानी का मात्रा ज्यादा है, तो पानी किस ओर बढ़ेगा? बोलो। बाहर। बाहर में। हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। वाटर विल गो फ्लो फ्रॉम द सेल टू द आउटर मीडियम। तो ऐसे केस में जब सेल से पानी निकल जाएगा तो सेल जो है श्रिंक करेगा कि स्वेल करेगा? सेल में से पानी निकल गया तो श्रिंक करेगा कि स्वेल करेगा? मैम श्रिंक करेगा। श्रिंक कर जाएगा। जब पानी निकल गया, विल्ट कर गया वो, तो ये श्रिंक हो जाएगा। ठीक, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और इसको अनम्यूट नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, यहाँ पर तो हमें फंक्शन ज्यादा पता नहीं है, वो पूछ लूंगी मैं, अभी रहने दो। एक्चुअली यू कैन हियर माय वॉइस, दैट इज एनफ। सो इट विल श्रिंक एंड दिस यू कैन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। इसको आराम से माइक्रोस्कोप के अंडर में देख सकते हो। अब तीसरा केस में क्या करना है? तीसरे केस में देखो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, लेट अस सी हियर। Wait for a minute and observe it again. What do you find? Did plasmolysis occur now? यहाँ पे हाँ, एक स्टेप छूट गया। ऐसे केस में श्रिंक करेगा, माइक्रोस्कोप के अंदर में हम लोग देखेंगे। Now place some real leaves in boiling water for a few leaves. अब हम कुछ लीव्स को बॉयल कर देंगे। ठीक, बॉइलिंग वाटर में रखना है, बॉयल नहीं करना है, बॉइलिंग वाटर में रख देना है। उसके बाद इसका स्लाइड हम लोग तैयार करेंगे और अंडर अ माइक्रोस्कोप पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। फर्क ये है कि जो सेकंड एक्सपेरिमेंट हम लोग किए, पहला वाला में पानी डाला गया, सेकंड में हम लोगों ने सॉल्टी सॉल्यूशन लिया, मतलब कि बाहर का जो मीडियम है वो सॉल्टी था जिसमें श्रिंक कर गया सेल और वो नजर आया माइक्रोस्कोप में। अब ये तीसरे केस में बॉइलिंग वाटर में हम लोग कुछ लीव्स को डाल देंगे और तब स्लाइड तैयार करेंगे। लेकिन इसमें भी
सॉल्टी सॉल्यूशन बाहर के मीडियम में रहेगा। अब हमें सेल को ऑब्जर्व करना है कि सेल में कोई बदलाव आएगा या नहीं। बोलो, ऐसे केस में जब बॉइलिंग वाटर में हम लोग सेल को प्लेस कर दिए, लीफ को प्लेस कर दिए और स्लाइड तैयार किए हैं और मीडियम जो है सॉल्टी है, सलाइन है, तो ऐसे केस में सिकुड़ेगा, श्रिंक होगा कि नहीं होगा? बोलो, ऐसे केस में होगा श्रिंक? Yes, ma'am. नहीं होगा, ऐसे केस में नहीं होगा। नो मैम। क्योंकि वो डेड हो गया, सेल जो है ना। अब जो चीज डेड हो गया उस पर भला क्या असर पड़ेगा? तो इसमें ना तो तुमको श्रिंकेज नजर आएगा, ना तो स्वेलिंग नजर आएगा, वो तो डेड है, इसलिए कोई असर नहीं पड़ने वाला है उसमें। एक नॉन लिविंग थिंग होता है जैसा, वो चीज है। ना लेट अस सी हियर, क्योंकि अंदर बाहर जो फ्लो करेगा वो इसमें ऑब्जर्व नहीं होगा, पानी जो अंदर बाहर फ्लो करता है। So wait for a minute and observe it again. What to be found? Did plasmolysis occur? No, no plasmolysis will occur. What do we infer from this activity? It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. यहाँ पर तुम्हारे बुक में अंडरलाइन करो, पेज नंबर 61, सेकेंड कॉलम में देखो। सेकेंड कॉलम में एकदम ऊपर का लाइन देखो, एकदम ऊपर के लाइन में है कि it appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. इस एक्सपेरिमेंट से हमें ऐसा अपियर हुआ कि लिविंग सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड नॉन लिविंग सेल्स नहीं एब्जॉर्ब करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मो ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है, जो डेड नॉन लिविंग सेल्स हैं उसमें ऑकर नहीं होगा। Cell walls present permit the cells of plants, fungi, and bacteria. Cell walls permit the cells of plants, fungi, and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. Cell wall का एक फायदा ये भी है, देखो यदि मान लो कि सेल में बहुत ज्यादा पानी हो जाए और वो स्वेल कर जाए, ठीक, बहुत ज्यादा पानी एंटर कर जाए और वो स्वेल कर जाए, तो सेल बर्स्ट भी हो सकता है। Isn't it? Do you understand the word bursting? बोलो, बर्स्टिंग का मतलब समझ में आता है? फटना। यस, लेकिन प्लांट के सेल में यदि स्वेलिंग ज्यादा हो जाए तो वो बर्स्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो सेल वॉल है वो उसको बचा लेगा, क्योंकि सेल वॉल का एक डेफिनेट शेप है, कितना भी स्वेल कर जाए तो उसके बाद स्वेलिंग उसकी रुक जाएगी और पानी उसमें एंटर ही नहीं करेगा, स्वेलिंग रुक जाएगी, तो बर्स्ट करने से वो बच जाएगा और ये बचाएगा सेल वॉल। तो सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। और इससे फायदा होता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि बैक्टीरिया है। अब मान लो कि वो बर्स्ट कर जाए बैक्टीरिया, कोई लिविंग थिंग है, सिर्फ पानी में रहने से, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो नेचर ने इसके लिए प्रोवाइड किया है, जो खास करके प्लांट सेल्स हैं, फंगी है, बैक्टीरिया है, टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। अब वो आराम से पानी खींच लेते हैं ऑस्मोसिस। द सेल स्वेल्स बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। द वॉल exerts an equal pressure against the swollen cell. Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell. तो ऐसे केस में क्या होगा? Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than animal cell. Animal cell के तुलना में ये ज्यादा withstand कर सकते हैं। अब इसमें अंडरलाइन जो करोगे वो लाइन है, cell walls permit the cells of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. इसको ब्रैकेट में डाल दो। Have you found that line? जो लाइन अभी अंडरलाइन किया था बस उसी के नीचे है, सेकंड कॉलम, पेज नंबर 61।
Yes, ma'am, done. Okay. Next, we will see about the nucleus. Nucleus is a very, very important organelle of a cell. Nucleus को इतना important क्यों मानते हैं? Can you tell in a sentence? Have you any knowledge? Because it controls the whole. Because it controls the cell. Okay. All the other Ma'am, organelles because- it controls and Ma'am, because it control all the activities performed by cell. yes, all the activities performed by cell. It contains the genetic material. The genetic material that is the chromosomes. इस न्यूक्लियस के कारण ही एक सेल, दो सेल में, दो सेल, चार सेल में इस तरह से बढ़ जाता है. That means it controls all the functions of a cell. Ma'am, and also perform the cell division. Yes, it helps in. Ma'am, ठीक है. cell division, ma'am. बिना उसके सेल डिवीजन होगा ही नहीं. फ्रॉम ये जो है ना, सेल डिवीजन हमारा जरूरी है रिप्रोडक्शन में भी और रिपेयरिंग पार्ट्स में भी. तो सेल डिवीजन में ये बहुत मदद करता है. रिमेंबर द टेम्परेरी माउंट ऑफ onion pill we prepared. We had put iodine solution on the pill. Why? What would we see if we tried observing the pill without putting the iodine solution? Iodine solution जो है डालने से क्या फायदा होता है? सेल का जब हम लोग माउंट तैयार करते हैं, स्लैट तैयार करते हैं, तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने का क्या फायदा है? बोलो तो. उसका जो जितने पार्ट्स हैं, लाइन वगैरह ना, उसको गहरा कर देता है. सारे पार्ट्स क्लियर नजर आता है. कलर्ड हो जाएंगे. हाँ, कलर्ड कर देगा ताकि वो क्लियर नजर आए माइक्रोस्कोप के अंडर में. वो कुछ पार्ट्स ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ज्यादा मोर क्लियरली नजर आते हैं. कुछ पार्ट्स हल्का एब्जॉर्ब करेंगे और कुछ पार्ट्स जो है ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं. What would we see if we tried observing the pill without putting the iodine solution? यदि हम आयोडीन सॉल्यूशन नहीं डालते हैं तो उतना अच्छा नजर नहीं आएगा. We will not get a clear picture of that cell. Try it and see what the difference is. Further, when we put some iodine solution on the pill, did each cell get evenly colored? तो क्या जो बाकी सेल हैं, जो हर एक तरह के सेल हैं, क्या वो इवेनली कलर्ड होते हैं? मतलब समान रूप से सारा सेल जो है, बोलो. No, ma'am. नहीं. No, ma'am. हाँ, कोई कलर जो है कम एब्जॉर्ब करेगा और कोई ज्यादा करेगा. According to their chemical composition, different regions of the cell get colored differently. एक ही सेल का different region जो है कलर होता है differently. Some regions appear darker than other regions. Apart from iodine solution, we could also use saffron in solution. Iodine solution के अलावा हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं? बोलो. And methyl. सैफ्रोनिल. हाँ, नहीं, आयोडीन के अलावा हम लोग सैफ्रोनिल सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं और मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन आल्सो टू स्टेन द cells. We have observed cells from an onion. Let us now observe cells from our own body. अब हम ऐसा करते हैं कि अभी तो प्लांट सेल हमने देखा, ओनियन का सेल देखा. एक और भी अच्छा तरीका है, हम अपना सेल देखें और खास करके चिक सेल ऑब्जर्व करते हैं. चिक सेल मतलब हमारे गाल के जो अंदर का सेल है, उसको वहां से लेते हैं. उसका भी बहुत अच्छा स्लाइड तैयार होता है. Let us take a glass slide with a drop of water on it. Using an ice cream spoon, gently scrape the inside surface of the chick. एकदम हल्का सा लिया जाता है, हल्का सा लेने से ही वो जो है आ जाएगा, सेल आ जाएगा तुम्हारे. जो कह रहा है कि आइसक्रीम स्पून से भी ले सकते हैं. Does any material get stuck on the spoon? कोई मटेरियल तो स्टक होगा, उसका स्ट्रेन हम लोग बना करके देख सकते हैं.
With the help of a needle, we can transfer this material and spread it evenly on the glass slide kept ready for this. To color the material, we can put a drop of methylene blue solution on it. Now the material is ready for observation under microscope. अब जो है observation के लिए वो ready है. Do not forget it to put a cover slip on it. What do we observe? What is the shape of the cells we see? Draw it on the observation sheet. ठीक है, उसका शेप भी हम लोग देख लेंगे. चिक सेल का. It will be given you the pictures that will given for you. Was there a darkly colored spherical or oval dot-like structure near the center of each cell? क्या each cell के बीच में dark colored कुछ नजर आया था? बोलो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. What is that structure called? Ma'am, nucleus. Yes, very good. It is called as nucleus. ठीक है? तो उसको nucleus कहते हैं. The nucleus. So this structure is called a nucleus. Was there similar structures in onion peel cells also? क्या onion peel में भी structure नजर आया था? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Nucleus कहाँ नहीं होगा? Each and every cell contains nucleus. अब हम लोग ये बात करते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है, तो हम लोग दो तरह के सेल के बारे में बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. एक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है और एक में मेम्ब्रेन नहीं रहता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन उसके पहले न्यूक्लियस में क्या क्या चीज होते हैं, उसका रोल क्या है, ये हम देखेंगे. द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस के ऊपर में एक डबल लेयर्ड कवरिंग है, उसको क्या कहते हैं? nuclear membrane. Yes, Nuclear it is membrane. called nuclear Ma'am, membrane. nuclear membrane. हाँ, ठीक है, ठीक है. The nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside. जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा सेल का आउटर कवरिंग है, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो है वो न्यूक्लियस का कवरिंग है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ सिलेक्टेड चीज को ही अंदर बाहर आने देता है, उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी काम है कि कुछ सिलेक्टेड चीज को ही अंदर आने दे या फिर बाहर जाने दे. Next we will see the nuclear membrane has pores which allow the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm, which we will talk about in section 5.2.4. The nucleus contains chromosomes. The nucleus में क्या होता है? Important feature. Nucleus contains Chromosomes. It contains chromosomes, which are visible as rod-shaped structures. वो दिखाई देगा rod-shaped structure की तरह. Only when the cell is all about to divide. Rod cell दिखाई देगा तुम्हारा कब? रॉड के रूप में हो जाता है. ऐसे तो वो उलझा हुआ दिखता है, लेकिन जब सेल डिवीजन होता है तो वो रॉड शेप हो जाता है. मतलब वो स्ट्रेट रॉड की तरह दिखने लगेगा, काफी क्लियर हो जाता है. लेकिन ऐसे वो इसी तरह से धागा की तरह उलझा हुआ रहता है. So which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide. Chromosomes remain contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of DNA. तो यही chromosomes है. It contains the features. It is transferred from the parent to the offspring to the next generation in the form of DNA. और ये ट्रांसफर होता है in the form of DNA.
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म हुआ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। मॉलिक्यूल्स के रूप में, डीएनए मॉलिक्यूल्स के रूप में होगा। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम क्या चीज का बना रहता है? DNA and protein. Yes, DNA and protein. DNA molecules contain the information necessary for constructing and organizing cells. DNA molecules जो हैं contain the information necessary for constructing and organizing cells. Actually देखो, chromosomes genetic material contain करता है DNA के फॉर्म में, और ये डिसाइड करता है कि कैसे सेल का अरेंजमेंट वगैरह होगा। ये जो है डीएनए, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। सारे इंफॉर्मेशन इसी में रहता है। कौन व्यक्ति कैसा होगा, लंबा होगा, मोटा होगा, काला होगा, गोरा होगा, ये सारे ट्रेड्स हमारे डीएनए में रहते हैं। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। और जो ट्रेड जिसमें रहते हैं उसको हम लोग जीन्स कहते हैं, यानी कि फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। इन अ सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडिंग, this DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material is visible as entangled mass of thread like structures. ये जहां डिवीजन नहीं होता है सेल का, वहां पे ये डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल के रूप में रहेंगे, मतलब एंटेंगल्ड थ्रेड्स के रूप में रहते हैं। वो दिखेगा ना कि बहुत सारा थ्रेड जो है एक दूसरे में उलझा हुआ है, इस तरह का दिखेगा। Chromatin material is visible as entangled mass of thread like structures whenever the cell is about to divide. जब भी सेल जो है about to divide होता है, the chromatin material gets organized into chromosomes. सेल में जब डिवीजन होना होगा तो chromatin materials chromosomes में अरेंज हो जाता है, that is rod shaped के रूप में नजर आते हैं। The nucleus plays a central role in cellular reproduction. तो न्यूक्लियस जो है that plays an important role in cellular reproduction, यानी कि एक सेल से दो सेल बनना, दो सेल से तीन, तो जो मल्टीप्लिकेशन है सेल का, इसमें न्यूक्लियस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। The nucleus plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. It also plays a crucial part along with the environment. So it has a crucial part along with the environment also in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity. By directing the chemical activities of the cell, तो जब पूरा सेल डिवीजन हो जाए तब वो नजर आता है कि किस तरह का एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होगा, कैसा एनवायरनमेंट है, ये सारा कुछ नजर आता है। In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined. जैसे कि बैक्टीरिया है तो उसमें न्यूक्लियर रीजन जो है ऑफ द सेल में भी poorly defined, उसमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होगा, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया में नहीं होगा। Such an undefined nuclear region containing only nucleic acids is called a nucleide. तो such an undefined nuclear region, अब पता ही नहीं चल रहा है कि न्यूक्लियर रीजन कौन सा है, उसमें कोई ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना कोई सेपरेशन नजर आ रहा है, तो न्यूक्लियस तो अलग से खूब बढ़िया से नहीं दिखता है, हल्का सा डॉट जैसा थोड़ा सा दिखेगा, स्पॉट जैसा, लेकिन उसके अलावा वो क्लियर नहीं रहता है। उसका यदि मेम्ब्रेन हो तब ना वो क्लियर दिखेगा। So such an undefined nuclear region containing only nucleic acids is called a nucleoid. तो ऐसे केस में उसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। Such organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes.
ऐसा सेल जो कि लैक करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। अब क्वेश्चन में लिखो, what type of cells are called prokaryotes? You write down one question. What type of cells are called prokaryotes? Prokaryotes. हाँ, तो कैसा सेल को हम लोग प्रोकैरियोट्स कहते हैं? बताओ, कैसा सेल को कहते हैं प्रोकैरियोट्स? बोलो। The cell which lack nuclear membrane are called prokaryotes. जिसको में सिंगल क्रोमोसोम रहेगा। हाँ, एक बार फिर से जवाब देना, तो कैसा सेल को कहते हैं? The organism who lacks nuclear membrane. Yes, which are lacks the called- cell in which the nucleus lacks nuclear membrane, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है, वैसा का एग्जाम्पल दे दो। और सिंगल क्रोमोसोम रहेगा मैम। हाँ ठीक है, तो एग्जाम्पल दो वैसे ऑर्गेनिज्म का। Bacterium cell. हाँ, बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस भी हो गया, ठीक। Ma'am, blue green algae. हाँ बोलो। Blue green algae. ठीक है, blue green algae. So such an undefined nuclear region containing only nucleic acids is called nucleoid. तो next question में लिखोगे what is nucleoid? Next question you write down what is nucleoid, and you will prepare the answers of all this. Such organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes. Pro means primitive. Pro का मतलब क्या होता है? Primitive. Primitive और primary मतलब शुरुआत का। Karyote मतलब कार्योन, that is nucleus. Prokaryotic, यहाँ पर कार्योन वर्ड भी है, न्यूक्लियस। तो उसको वर्ड को स्प्लिट करके उसका हर एक पार्ट का मीनिंग हमें सीख लेना है, वो भी सीख लेना है। Organisms with cells having a nuclear membrane are called यूकैरियोट्स। तो एक तो हो गया प्रोकैरियोट्स, एक एग्जांपल है यहाँ पे बैक्टीरिया, वायरसेस भी हो जाएगा यहाँ पे, और फिर है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स eukaryotes. Organisms with cells having a nuclear membrane are called eukaryotes. Prokaryotic cells also lack most of the other cytoplasmic organelles. ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें बाकी जो ऑर्गेनिल्स हैं कोई जरूरी नहीं है कि वो हो ही, क्योंकि वो प्रिमिटिव मतलब शुरुआती दौर के हैं, उसमें ज्यादा ऑर्गेनिल्स नहीं रहते हैं। लेकिन जो मल्टी सेलर ह्यूमन बींग्स वगैरह हैं तो उसमें सारे ऑर्गेनिल्स